RG Kar, Ujjain, Bangalore, Hathras, Jharkhand. Indian women deserve better. Welcome to India with Clarity. I am Dr. Shivan. जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है हमारी पूरी कॉन्शियसनेस शॉक हो जाती है. Our country protests in a state of denial. We don't believe that this shocking incident can happen and we want change. But what stops it? Why is it that violence against women keeps on happening? हमने बहुत बात करी है. A lot of discussion has happened in the country about hanging the rapists, the severity of punishment, the certainty of punishment, and having a legal reform to solve this problem. But is it a legal problem? हमारी सारी discussion retributive justice की है, that we want to get retribution against those who have perpetrated this horrendous crime. But क्या ये crime सिर्फ एक crime है जो isolation में exist करता है, या ये हमारी society की psychology की problem है? It is a spectrum of psychological issues, a polluted mind, a society that has been polluted with the idea of hypersexualization and over-objectification of women, and then finally it culminates into this. It is a structural problem that exists on a spectrum. उस spectrum के end में the biggest problem is rape. But what is it that is polluting the mind of society? We need to change our social psychology and we need to change how we look at women. अगर आप देखो ये problem यहाँ पर रेप्स की है, बट इससे पहले बहुत सारी स्पेक्ट्रम ऑफ प्रॉब्लम्स हैं विच एग्जिस्ट. आरजी कार एंड उज्जैन में जो हुआ दैट वाज अ हॉरेंडस इंसिडेंट. दोज रेपिस्ट डिजर्व टू बी हैंग्ड. बट क्या यही प्रॉब्लम है? देयर आर सम शॉकिंग डिटेल्स दैट आई विल टेल यू नाउ. आरजी कार एंड उज्जैन के केसेस पे देयर हैव बीन सर्चेस ऑन पॉर्न साइट्स ऑन द इंटरनेट वेयर पीपल आर लुकिंग फॉर दोज वीडियोज. क्विंट में एक आर्टिकल छपा जहां ये बताया गया कि लोग उस वीडियो को ढूंढ रहे हैं. टेलीग्राम पे लोग सर्च करके वेस्ट बंगाल में जो विक्टिम हैं उनके नाम से वीडियो सर्च कर रहे हैं. जब 2018 में कथुआ में गैंग रेप हुआ था तो आउटलुक में एक रिपोर्ट छपी कि इंडिया में पॉर्न साइट्स पे द नेम ऑफ द विक्टिम वाज ट्रेंडिंग. दिस इज द प्रॉब्लम. इसके एक स्टेप और पीछे जाते हैं. व्हेन मेन आर इन पावरफुल पोजीशंस दे टेंड टू एक्सप्लॉइट वुमेन. रिसेंटली हेमा कमिटी रिपोर्ट आई दैट टॉक्ड अबाउट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन इन केरला सिनेमा. It is a well documented fact that वहाँ पर sexual exploitation हुई. Casting couch was a very normal practice and women were exploited to get normal roles in the industry. उससे थोड़ा और पीछे जाते हैं. There was an incident of boys locker room. 11th और 12th class के बच्चे एक Instagram पे ग्रुप बना के women के बारे में बात कर रहे हैं in the most horrific way possible. They are objectifying them, they are hypersexualizing them and they are dehumanizing them. और पीछे जाते हैं. Manu Bhaker ma'am, probably the most successful Olympian that we will ever have. 2 bronze medals in 1 Olympics. But उनकी जो reels Instagram पे बन रही हैं, they are not about her training, they are not about how hard she has worked, they are about how good she looks. और पीछे जाते हैं. There is a research which shows that 50% of young Indian men believe that if women are wearing short clothes, they are inviting rape. Pew Research ने दिखाया that 34% of Indian husbands believe that they have the right to beat up their wife for whatever reason. And lastly, if a woman is watching this video, you can confirm this in the comments. And if a man is watching this video, you can ask a woman around you. जितनी भी आपके आसपास women हैं उनसे पूछिए, have they ever felt uncomfortable in a public place? The answer will indubitably be yes. This is the problem. Rape is the last end of the spectrum. It is the most horrible end of the spectrum. But problem हमारी psychology की है. It is about how we think about women, how we view women, and how we idealize them. हमें नहीं लगता that they are humans who have their own emotions, who have their own thinking. They are to be treated as objects of desire. We are just treating them as objects of sex. This is the problem. क्यों है ये problem? हम women के बारे में वैसे ही सोचते हैं जैसे society हमें women को दिखाती है. Our thoughts about women are shaped by our determinants of psychology. हम सोशल मीडिया की बात करते हैं. जो Instagram है, YouTube है, उस पर हम सब रील्स देखते हैं. बट एक बार याद करो, the concept of intimacy with a woman is connected with the idea of emotions. हमारे emotions involved हैं. We are looking at them, talking to them, learning about their being and then being intimate with them. बट अगर हम सोशल मीडिया में रील्स की बात करें, वहाँ पर वही इंटीमेसी हमें दिखाई जा रही है. बट कैसे? बस 1 मिनट में. 1 मिनट में देखा, स्क्रोल अवे. फिर 1 मिनट देखा, स्क्रोल अवे. मुझे कुछ नहीं पता अबाउट हर थिंकिंग, हर थॉट्स, हर फीलिंग्स, हर एज अ पर्सन. बस आई एम वॉचिंग दैट ओवर सेक्शुअलाइज्ड कंटेंट द एंटायर डे एंड स्क्रोलिंग इट अवे. अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन की एक स्टडी ने दिखाया दैट जितना ज़्यादा हम ये कंटेंट देखते हैं उतना ज़्यादा वी टेंड टू डीह्यूमनाइज वुमेन. एंड दिस गेट्स रीइंफोर्स्ड
आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं, आईडी किधर है, वेयर दे आर जस्ट लुकिंग एट आईडीज ऑफ वुमेन टू फाइंड. लोग वहां से आईडी ढूंढ के दे जस्ट वांट टू लुक एट दैट वुमन. दे डोंट वांट टू नो अबाउट हर, दे जस्ट वांट टू ट्रीट हर लाइक एन ऑब्जेक्ट. ये है प्रॉब्लम. दिस इज वेयर द स्पेक्ट्रम स्टार्ट्स एंड देन आवर माइंड स्टार्ट्स टू गेट पोल्यूटेड. एंड ये नहीं है कि ये सिर्फ अडल्ट्स के साथ हो रहा है. वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक स्टडी ने दिखाया कि इंस्टाग्राम का ये एल्गोरिदम, यूट्यूब का ये एल्गोरिदम इज ऑल्सो शोइंग दीज थिंग्स टू 13-year-old people. Kids are the future of our society and this is the exposure we are giving them. इस तरह का exposure makes us dehumanize women. We don't look at them as women anymore, just as objects of our desire. और ये सेम चीज़ हमारी मीडिया में भी हो रही है. जैसे मैं आपको मनु भाकर मैम की बात कर रहा था. She came back to India. She is a very successful Olympian. बट उनसे ये नहीं पूछा गया कि इंडिया में स्पोर्टिंग का आर्किटेक्चर कैसे बेटर किया जा सकता है, हम शूटिंग में और मेडल्स कैसे ले सकते हैं, वो ऐसा क्या करें कि नेक्स्ट टाइम ये ब्रॉन्ज मेडल्स गोल्ड मेडल बने. ये नहीं पूछा गया. उनसे पूछा गया कि आप शादी कब करोगे. उनसे पूछा गया कि आपका नीरज चोपड़ा के साथ क्या रिश्ता है. अपनी शादी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कि मम्मी नीरज चोपड़ा से कुछ बात कर रही हैं. क्या बात हो रही है? बातें बड़ी बन रही है इस पर. बिकॉज दिस इज हाउ वी ट्रीट आवर वुमेन. ये चीज़ श्रीजेश से तो नहीं पूछी गई. When he was back, he is also an athlete. He is also someone who has done great, but he is respected as a sports person, not for his looks, but for his training. When I went to the UPSC interview, cleared the UPSC exam, nobody asked me why I was wearing a grey suit on the day of my interview. But जो बाकी UPSC toppers हैं, who are my friends or my students, at least once they have been asked कि उन्होंने उस दिन वो साड़ी क्यों डाली. Why does it matter? If it doesn't matter for a man, it should not matter for a woman. मीडिया में जो हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, बस मैं एक स्प्रे लगा लूँ, बस मैं एक गाड़ी ले लूँ, एंड ऑल द वुमेन अराउंड मी विल कम मार्चिंग टुवर्ड्स मी एंड आई विल बिकम अ चिक मैग्नेट. बट दैट डज नॉट एग्जिस्ट. दे आर ह्यूमंस. वुमेन ये नहीं देख रही कि मैंने कोई स्प्रे लगा रखा है या मेरे पास कोई गाड़ी है, बट हमें लगता है दे आर ट्रॉफीज टू बी हैड बिकॉज हमें एडवर्टिजमेंट्स ऐसी दिखाई जाती हैं. एंड दिस पोल्यूट्स द माइंड ऑफ आवर सोसाइटी. और फिर आते हैं हम हमारे फेवरेट बॉलीवुड पर. बॉलीवुड इज रोमांटिसाइजिंग, regularizing and reinforcing the idea of toxic masculinity. Kabir Singh हो या Animal हो, it is shown that the female characters will actually like if a man is abusing them, is cheating on them and not treating them properly. अगर ये काम कर भी दिया तो women will appreciate it क्योंकि women को ये चीज़ पसंद है. होठों पे ना है तो भी दिल में हाँ होगा. This is the exposure we are getting. UN Women created a sexy lamp test to check Bollywood movies. If you replace the women in Indian movies with a sexy lamp, just an object of attraction जिसे बस मुझे देख के अच्छा लग रहा है, it does not have an impact on the story. आप ये सोचो कि आइटम सॉन्ग्स का क्या लॉजिक है. Why do they exist? They do not add to the story. कुछ नया नहीं आता. They are just objects of desires and the most superficial aspect of her being, how she looks, is displayed. हम देखेंगे, वीडियोस वायरल होंगी, मूवी चल जाएगी and our mind will get polluted. It has been 30 years, almost 30 years, since the Beijing Platform for Action was signed, where India committed that we will reduce sexualization and objectification of women in movies. But UN Women की एक study ने दिखाया that when we look at nudity in movies, women are 3 times as likely to be shown as nude in any Bollywood movie. अब ठीक है, nudity का एक logic हो सकता है to the story, but if it was only the idea of the story, तो मेन और वुमेन की न्यूडिटी की परसेंटेजेस सेम होनी चाहिए. Women are 3 times as likely to be shown as nude because they are objects, they are trophies, they are not humans. Men are the central characters, women are the love interests. This is the feedback we are getting and this is polluting our minds. एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताता हूं जो आपके होश उड़ा देगा. ऑस्ट्रेलिया में there was an Indian origin man who was stalking a woman for 18 months. He was arrested and brought to court. कोर्ट में उसके डिफेंस लॉयर ने कहा दैट दिस मैन वॉचेस बॉलीवुड मूवीज और बॉलीवुड मूवीज में स्टॉकिंग, पीछा करना, रिजेक्शन के बाद भी परस्यू करते रहना इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल. ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ने इस बात को इन्वेस्टिगेट किया और फाइनली क्या हुआ? दैट मैन वॉज एक्विटेड. द कोर्ट सेड दैट इंडियन मूवीज का ट्रांसफॉर्मेटिव रोल है हमारी पॉपुलेशन पे और उन मूवीज में यही दिखाया जाता है. सो दिस सीम्स एज नॉर्मल टू दिस मैन और उसको क्राइम के लिए चार्ज नहीं किया गया. दिस is what we are learning about women and it is polluting our society's psychology. और फिर ये यहाँ लिमिटेड नहीं है, ये हमारी फैमिलीज तक भी आता है. There is an idea of देवी dichotomy. एक तरफ तो हम देवी को वर्शिप करेंगे, हम कहेंगे कि हमें सब कुछ दीजिए माँ, बट हमारे घर में ही जो लड़की है उसे हम प्रेफर नहीं करेंगे, उसे हम फैसिलिटीज नहीं देंगे.
2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे ने इसे कहा सन मेटा प्रेफरेंस, दैट पीपल विल कीप हैविंग सन्स और कीप हैविंग चिल्ड्रन टिल दे गेट द राइट अमाउंट ऑफ सन्स दैट दे एक्चुअली वांट, एंड दिस हैज लेड to more than 21 million unwanted girls in India. People don't want them as kids. They are just having them जब तक उनका बेटा नहीं हो जाए, because men are the greatest thing that has happened to Indian society. ये है हमारी thinking. And अब जब women इस issue को लेके अपनी voice raise कर रही हैं सोशल मीडिया पे, Instagram पे, YouTube पे, तो हमारा क्या reaction है as men? Not all men. सबसे पहले हमें ये बताना है कि नहीं, हम involved नहीं हैं. जब हम रैंडमली बिना सोचे विमेन के बारे में ये बोल देते हैं दैट ऑल विमेन आर बैड ड्राइवर्स, तब तो हम नहीं कहते नॉट ऑल विमेन. जब हम ऐसे ही बोल देते हैं कि विमेन मेलोड्रामेटिक होती हैं, इमोशनल होती हैं, तब तो हम नहीं बोलते नॉट ऑल विमेन. पर जब हमारे पे बात आई है तो इशू को समझे बिना, सिस्टेमिक प्रॉब्लम को रियलाइज करे बिना हम सबसे पहले कह रहे हैं नॉट ऑल मेन, क्योंकि हमें खुद को डिफेंड करना है. हम उनकी वॉइस को सामने नहीं आने दे रहे, हम इशू को डाइल्यूट कर रहे हैं, फोकस को डाइवर्ट कर रहे हैं, एक सिस्टेमिक इशू को पर्सनल प्रॉब्लम बना के कह रहे हैं नॉट ऑल मेन. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी. जब भी ऐसा कोई केस होता है हमारा रिएक्शन होता है गवर्नमेंट शुड एक्ट, गवर्नमेंट को लॉ लाना चाहिए, गवर्नमेंट को रेपिस्ट को हैंग करना चाहिए, एंड एज इन्फॉर्म्ड सिटीजंस वी हैव दैट राइट. ये बात बिल्कुल ठीक है दैट गवर्नमेंट नीड्स टू एक्ट, बट क्या गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही? गवर्नमेंट हैज वर्कड अ लॉट टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ वुमेन. They have passed the Criminal Law Amendment Act. There are fast track courts. There is the POSH Act, the POXO Act. There is the idea of women ownership in PM Awas Yojana. There is a Nirbhaya Fund, a Nari Shakti Adhiniyam, reservation for women in local government. This might not be enough. It might not be perfect. But we cannot say our government is not acting. But ये जो psychological problem है, इसके लिए हमने क्या किया? We realized all this is happening, but we let it work as चलता है. ये तो होता ही है, हम तो जोक्स मारेंगे ही. दूसरा बंदा काम करे, गवर्नमेंट एक्ट करे, रेपिस्ट को खत्म करे, बट हम कुछ चेंज नहीं करेंगे. दिस इज व्हाट वी नीड टू रियलाइज. ये जितनी बड़ी लीगल प्रॉब्लम है, जितनी बड़ी रेट्रीब्यूटिव जस्टिस की प्रॉब्लम है, उतनी बड़ी प्रिवेंटिव जस्टिस की भी प्रॉब्लम है. उतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारी साइकोलॉजी की भी है, हमारी फिलॉसफी की भी है, और हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन भी है. वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, we need to change, and all men have this responsibility because the women of India deserve better.